In 2025, spices, iPhones, and Russian oil all became a part of a full blown tariff war between India and the United States. US President Donald Trump threatened further tariffs on India. But he also talked about one country whose tariff rates might change before that implementation date on Thursday, and that's India. Meantime, President Trump says he will, quote, substantially raise tariffs on India. Donald Trump is just obsessed with India. But this isn't about politics or policy. It's about how a country flexes its economic power. कैसे एक कंट्री ट्रेड के ज़रिए दूसरी कंट्री को प्रेशराइज करती है ताकि एक एडवांटेज मिल पाए उसे इन द ट्रेड वॉर। और इस टाइम पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंडर काफ़ी ज़्यादा नए नए एक्शन एंड रेगुलेशंस लिए जा रहे हैं अगेंस्ट मैनी कंट्रीज़। बट स्पेसिफिकली आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एक्शंस इंडिया के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं एंड क्या क्या एक्शंस इंडिया ले रही है। तो चलिए कहानी की तरह समझते हैं दिस इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ वॉर 2025। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन। टैरिफ का मतलब होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है व्हेन दे इम्पोर्टेड। थिंक ऑफ इट लाइक एन एंट्री फी फॉर फॉरेन गुड्स। अगर इंडिया से डेनिम जैकेट यूएस में इम्पोर्ट हो रहा है देन द यूएस कैन चार्ज 25% एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज इट्स फॉरेन। इस पूरी चीज़ को कहते हैं टैरिफ एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। टैरिफ कैन प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, प्रेशर अदर गवर्नमेंट्स और सिंपली अर्न रेवेन्यू। बट जब दो कंट्रीज एक दूसरे पर बार बार टैरिफ लगाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेड वॉर। और अभी हम एक ऐसे ही फेज में हैं। The India-US tariff war began during Donald Trump's first term as US president from 2017 to 2021, and it was all about trade imbalance, national interest, and tough negotiation tactics. Trump's America First policy aimed to reduce what he called unfair trade deals. He often targeted India, saying they charge 100% duty on Harley-Davidson while we charge almost nothing on theirs, and that is not fair. Then in 2018, he imposed 25% tariffs on steel and 10% on aluminium imports globally, and India got affected directly by it. But things escalated in 2019 when the US revoked India's GSP status. Now GSP, or Generalized System of Preferences, was a trade program under which the US allowed developing countries like India to export goods duty-free, worth $6 billion every year. This helped Indian businesses, especially textiles, gems, and chemicals, to stay competitive. Trump cancelled it, saying India wasn't giving fair access to US companies, especially in dairy, medical devices, and e-commerce sector. In response, India imposed tariffs on 28 US goods, like almonds and apples, directly hitting American farmers. In July 2025, Donald Trump, back in White House, issued something called Liberation Day tariffs. इस Liberation Day tariff के अंडर he announced कि all Indian goods coming into the US will have 25% tariff on them. रीज़न वेल ट्रम्प का कहना ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है फ्रॉम रशिया एट अ वेरी चीप प्राइस एंड उसे एक महंगे प्राइस पे बाहर ओपन मार्केट में बेच रहा है क्योंकि इस टाइम पे रशिया से ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं खरीद रही हैं ऑयल बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। ट्रम्प का कहना है कि इंडिया इज इनडायरेक्टली फंडिंग पुतिन्स वॉर। बट हेयर इज अ सरप्राइजिंग पार्ट. At the same time, the United States has been buying uranium from Russia, worth over $1 billion since the war began. तो सवाल ये उठता है जब इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ऑयल खरीदे इट इज़ रॉन्ग, बट व्हेन द यूएस डज द सेम विद यूरेनियम इट्स कंसिडर एक्सेप्टेबल. एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अ ग्लोबल नीड और हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेती है. डबल स्टैंडर्ड्स ओनली वीकन ग्लोबल डिप्लोमेसी. लेकिन ये सिर्फ ऑयल का इशू नहीं था. दिस मूव वॉज अबाउट अमेरिकाज ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया. In 2024, the US imported over $87 billion worth of Indian goods, but exported only $41 billion, and that is a big gap. भारत ने कहा हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं. In fact, India offered to narrow the tariff gap between two countries, bringing it down from 13% to just under 4%. मतलब अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम करोगे तो हम भी आपके लिए मार्केट और खोलेंगे. लेकिन एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट अब भी है, एग्रीकल्चर एंड डेयरी. इंडिया इज सुपर प्रोटेक्टिव फॉर इट्स फार्मर. चीप अमेरिकन कॉर्न, वीट या डेयरी प्रोडक्ट्स अगर यहाँ आए तो देसी किसानों को बहुत ही हार्ड हिट लगेगा. सो दैट्स अ नो गो फॉर नाउ. सो लेट्स टॉक द कॉन्सिक्वेंसेस. इंडियन करेंसी जो रुपी है वो अभी ऑल टाइम लो पे पहुंचने वाली है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 87 रुपीज़ अगेंस्ट द डॉलर. अब इसमें बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट शो करते हैं इंडिया के लिए. फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्ड बैक कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नर्वस चल रहा है एंड सेंसेक्स स्लिप हो गया. On the flip side, American shoppers are feeling it too. Prices of Indian jewelry, textiles, smartphones, auto parts, all expected to rise in the US,
retailers are ready for bracing up to 17% hikes on common Indian imports. Indian businesses are thinking smart, जैसे Tata, who might shift some of their jewelry manufacturing to the Gulf. Why? Because goods from there face only 10% tariff in the US. While all of this is happening in public, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है. India and US are talking about a big and ambitious $500 billion bilateral trade by 2030. अब जो हमने फैंसी वर्ड सुने उन सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं. टैरिफ को अगर सिंपली कहें तो टैरिफ इक्वल्स टू इम्पोर्ट टैक्स. IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट. इस लॉ को यूज़ करके ट्रम्प ने बोला कि इंडिया पे इकोनॉमिक इमरजेंसी के नाम पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाएंगे. लिबरेशन डे टैरिफ्स इज़ अ फैंसी नेम फॉर ट्रम्प्स 2025 ग्लोबल टैरिफ प्लान. डी मिनिमस रूल के अंडर लो कॉस्ट इम्पोर्ट्स फॉर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, बट अब इवन स्मॉल शिपमेंट्स कैन बी टैक्स्ड. आप लोगों को ये सारे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे होंगे, बट दीज आर द मेजर टूल्स दैट आर यूज्ड इन अ ट्रेड पावर प्ले. Trump has hinted at raising tariffs even more, beyond 25%, especially if India doesn't reduce Russian oil dependency. India, meanwhile, is working on a massive 20,000 crore Brand India export support plan. It will help exporters survive this global storm. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो पॉलिसीज़ की नहीं है. ये एक बहुत ही बड़ा चेस बोर्ड है जहाँ पर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स सब एक साथ खेल रहे हैं. रिमेंबर, जब आप अगली बार अमेजोन से कुछ मंगाओ या फिर गोल्ड का रेट चेक करो, तो ये टैरिफ वॉर बहुत ही क्वाइटली आपके इन डिसीजंस को टच करती है. If this video helped you understand the drama behind the data, hit the like button and comment your thoughts in the comment section. Also subscribe to the channel if you want to see more videos that make sense of the chaos. Signing off, that's Vasu.